स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Welcome to Study IQ IAS, and today we have Ms. Shivani Panchal, All India Rank 53, UPSC CSE 2024 final results. Welcome, Shivani. Thank you so much, sir. Shivani is from Haryana, and interestingly, she has cleared this UPSC Civil Service exam in first attempt, और इससे पहले हरियाणा PCS का जो एग्जाम था वो भी she has cleared in first attempt. As of now, she is undergoing training for SDM. हमारे सामने अब शिवानी और अपने पूरे एक्सपीरियंस को, पूरी जर्नी को शेयर करने वाली हैं। मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट की जर्नी में कुछ एकेडमिक और कुछ नॉन एकेडमिक हर्डल्स होते हैं जो समय रहते उसको सॉल्व कर लेते हैं और परसिस्टेंटली लगे रहते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं। और अगर कोई क्लियर भी नहीं करता तो भी ये तैयारी ऐसी है कि उनको इतना कुछ सिखा देती है that they turn out to be a different person altogether. I hope you would agree on this, शिवानी। Definitely. तो शिवानी, आपकी जर्नी से शुरू करते हैं। कब आपने सोचा कि मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? मैं बता दूं, शिवानी ने NIT कुरुक्षेत्र से BTech करी सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद यू स्विच्ड टू दिस फील्ड कि आपने सोच लिया एकेडमिक्स। No. Firstly, I worked for the corporate sector for 2 years. Okay. Then, after fed up with the corporate sector, I thought like I should quit my job, and I want to work on my childhood dream. Basically, clearing the UPSC was my childhood dream. So in my family there was a discussion about who wants to become whom. So I used to say that I want to become an IAS officer, and then I started preparation. Okay. तो आपको कब से लगा कि हाँ मुझे IAS ऑफिसर बनना है? क्यों लगा? हर किसी के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, और कई बार होता है कि बचपन में हम काफ़ी कुछ कहते हैं। जैसे मैं पर्सनली एक टाइम पर पायलट बनना चाहता था, एक टाइम पर कुछ ब्रिगेडियर, कोई मूवी देखी थी मैंने, वो बनना चाहता था। तो मतलब शिफ्ट होते रहते हैं। तो क्या ऐसा था कि आपने सोचा IAS ऑफिसर, वो कंसिस्टेंटली फिर आपने IAS के बारे में ही सोचा, या उसमें कुछ चेंजेस आते रहे? कंसिस्टेंटली तो मैंने सोचा IAS के बारे में था, बट at a major point of a time changes. Firstly, after the 12th, I thought I will take admission in DU and do some humanities subject. But I got admission in NIT. Then family said that let's do the engineering. Engineering will be the very good backup plan. And after like passing out from college, I thought now I should start the preparation for the UPSC. Then I said for the placement, I got the placement. Then they said just give some time to the private. You should try the private sector as well. So there is a major like tons in my preparation journey where I was not consistent with my goal. But finally, when I tried every single thing, now I came to that I have to prepare for the UPSC. So you were thinking about UPSC. So when you were in NIT Kurukshetra in your BTech, were you preparing for UPSC from that time itself? Means you were doing some groundwork like current affairs or some basic subjects? It's not like that dedicated focused groundwork, but I have seen so many topper talks in my college itself. I've also decided the books, and even though I have purchased the 5th edition of M. Lakshmikant back in 2019, so that book was with me right now also. Great. ठीक है, तो आपने फिर पूरी तरीके से तैयारी कब से शुरू करी? It means structured form में। देखिए, अगर इन्होंने सक्सेस हासिल किया है, तो what you need to learn from this discussion is there's method to everything. Yeah. बिना किसी मेथड के कोई काम कंप्लीट नहीं होता। तो आपको जानना होगा कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की जो डिमांड है उसको इन्होंने पूरा कैसे किया। So मैंने properly on 10th June I resigned from my job, and on 11th I came back to my home. 10th June 2023. 2023. ठीक I है। resigned from the job, and I started my full-fledged preparation from the 12th June 2023. ठीक है। And from that now onwards, I was full-time preparing for the UPSC. ठीक है, तो जून से लेकर आपने पूरा 1 साल दिया प्रीलिम्स से ठीक पहले तक, कि आप अपने GS का कोर्स भी कंप्लीट कर लें, रिवाइज भी कर लें। इस बीच आपने कुछ टेस्ट भी दिए थे? Test as such, I appeared in between for the state PCS. Okay. And also the मतलब आपने एग्जाम्स को ही टेस्ट बना लिया, ठीक है? Definitely. तो कि जो नॉलेज गेन करी है उसको सीधा अप्लाई करेंगे स्टेट PCS के एग्जाम में, क्योंकि GS की जो नॉलेज है वो तो यूज़ होगी, बस स्टेट सेंट्रिक कुछ और नॉलेज भी आपने गेन करी होगी। हाँ, डेफिनेटली। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर कई बच्चे इस वजह से भी स्टेट PCS नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब फोकस डिसरप्ट हो जाएगा। लेकिन आपने 2023 में स्टार्ट किया और 2024 वाला आपने हरियाणा वाला एग्जाम भी दिया था। yes. और वो भी आपने क्लियर किया, और उसके बाद फिर UPSC सिविल सर्विस एग्जाम भी क्लियर किया। तो जो हरियाणा के लिए अलग अलग से आपको पढ़ना था, वो आपने कैसे मैनेज किया? कितना टाइम दिया, और एग्जाम से कितने पहले आपका फोकस हरियाणा पर हुआ?
फर्स्टली सिलेबस की बात करें, हरियाणा और यूपीएससी के बहुत सिमिलर लाइंस पर है। हरियाणा स्टेट जीके हमें अलग से करना पड़ता है, उसके अलावा जीएस के अंदर एक अपना स्टैटिक का पोर्शन आता है। ऑल द थिंग्स आर सेम, बट यू आल्सो हैव टू फोकस ऑन हिंदी एंड इंग्लिश। यूपीएससी में वो एज अ मैरिट काउंट नहीं होते, बट स्टेट पीसीएस वो मैरिट काउंट होते हैं। और फुल फ्लेज प्रिपरेशन ऑन दिसंबर एचसीएस का फॉर्म निकला था, तो फ्रॉम 1st Jan आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द HCS prelims, and then I gave the prelims, and then I switched back to the UPSC prelims till the HCS prelims का रिजल्ट नहीं आया था। HCS prelims कब था? On 11 Feb most probably। तो 11 Feb था और दिसंबर में इसका एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आया था, yes। फॉर्म आ गया था। तो उस बीच आपने थोड़ा हरियाणा जीके उस पर फोकस स्टार्ट कर दिया, और इस बीच आपने यूपीएससी का जो फोकस था, क्योंकि फिर आपका 2024 वाला प्रीलिम्स वो भी था, उस पर भी आपने फोकस रखा। yes definitely। ठीक है, फिर वो प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद वो वाला मेंस कब हुआ? मेंस मेरा मार्च में था, 28-29 मार्च। तो टिल देन लाइक नियरली एट द एंड ऑफ द लाइक वी कुड से फैब देयर वाज अ रिजल्ट। एचसीएस का प्रीलिम्स आया था जिसमें मुझे पता चला कि मेरा हो गया। फर्स्टली आई वाज थिंकिंग कि मेरा एचसीएस का प्रीलिम्स नहीं होने वाला है, तो फिर मैंने इसलिए उसी के उसमें आके यूपीएससी का प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट आई लेफ्ट लाइक विद द प्रिपरेशन ऑफ 1 month आई गेव द एचसीएस मेंस। तो कई स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि अब क्योंकि मैं इस वाले स्टेट पीसेस का प्रीलिम्स दूं या मेंस दूं या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स पे फोकस करूं, ये काफ़ी डिलेमा होता है। जैसे बीपीएससी एग्जाम को लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन रेज करते हैं। तो शिवानी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू, गुड एग्जाम्पल, कि शी मैनेज टू एक्चुअली डिलीवर रिजल्ट इन बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, उसके बाद प्रीलिम्स हुआ, तो आपने कहा कि उस बीच आपने जो भी आपके पास लिमिटेड टाइम था उसके थ्रू आपने फोकस किया। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने कब करी? आंसर राइटिंग, द गुड पार्ट इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन बैक इन June 2023, like June, July, in the July I started writing answers। जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जुलाई से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर कोई पोर्शन तैयार किया तो उसको लिख कर देख लिया, तो इससे याद भी रहा और गैप्स जो थे वो भी पता लगते रहे। पीपल सेज दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग द होल फाउंडेशन दे शुड राइट। इफ आई हैव रेड द 2 chapters ऑफ लक्ष्मीकांत, आई विल पिक अप द PYQ ऑफ द मेंस एंड देन आई स्टार्ट राइट आंसर राइटिंग, बिकॉज द फ्रेश मेमोरी, मॉर्निंग में पढ़ा होता है, इवनिंग में आप क्वेश्चन लिख लेते हो, एटलीस्ट यू कुड हैव दैट, आपको एक स्ट्रक्चरिंग आंसर की हो जाती है और आप लिख पाते हो थोड़ा बहुत, वो फियर हट जाता है। क्योंकि कंटेंट तो पूरा पढ़ने के बाद ही आपका डेवलप होता है, तो आपका आंसर राइटिंग वाला फियर वहाँ से निकल जाता है। दैट्स लाइक अ साउंड स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाए या मल्टीपल सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएं, तो फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको फिर दोबारा से उतनी मेहनत करनी है उसको रिवाइज करने में भी, प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर लिखते रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंस चेन ऑफ थॉट्स बनने लग जाएंगे। प्लस एक और एंगल है, अगर आप लिखते हैं तो उसमें आपको इंटरलिंक करना पड़ता है कुछ सब्जेक्ट्स में करंट से, तो ऐसे में करंट का भी बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाता है, क्योंकि यू नो वेयर डेफिशिएंसी वाज। तो मतलब दिस प्लेड वेल फॉर हर, तो आपको भी ये सोचना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपने कब से शुरू कर दी थी? June. In the June. The first thing I started preparing, my target was I have to done the optional first. ये सुन रहे हैं आप? कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स कर लें, 4-5 महीने बीत जाते हैं, तो अगर उन्होंने मई से स्टार्ट किया, अप्रैल से स्टार्ट किया, तो उन्हें सितंबर अक्टूबर हो जाता है। तब लगता है कि हाँ अब हम ऑप्शनल करें। फिर ऑप्शनल तब से स्टार्ट करते हैं तो फैब तक आ जाता है, और फैब में नोटिफिकेशन आ जाती है, तब तक ना रिवीजन हो पाए ना आंसर राइटिंग हो पाई है। फिर लगता है ये वाला प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा, इसको ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर देंगे। तो साउंड स्ट्रेटजी ही इज़ कि जब से आप स्टार्ट करें तैयारी, तब से ही आप ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि हमें कंप्लीशन के साथ साथ आंसर राइटिंग, गैप, ये सब फुलफिल करना है, तभी वो कॉन्फिडेंट प्रीलिम्स होगा। मतलब ये एक फैसला, मतलब कितना बड़ा फैसला है, मतलब पूरा 1 साल फिर दोबारा से शुरू करना पड़ता है केवल एक डिसीजन की वजह से। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि जीएस की जो प्रिपरेशन है उसकी सेगमेंटेशन करते हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऐसे। तो आपने कौन से बेस सोर्सेज, पहले क्वेश्चन तो सबके अंदर होता है कि आप हमें एक स्टैंडर्ड सोर्स बता दीजिए जो आपने बार बार रिवाइज किया। तो हम सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं, तो आप बताना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्सेज में पॉलिटी, द बाइबल, M. लक्ष्मीकांत आई हैव रेड। इन द इकोनॉमी एंड इन ज्योग्राफी आई ओनली रेड द 11th class NCERTs, and apart from that, and in the environment I use the PMFIS. For the science and tech I read the 12th class biotechnology portion, and apart from that current affairs. And in art and culture I refer to the certain chapters of the Nitin Singhania. And for ancient and medieval history I use the Tamil Nadu 11th board book. And apart from that the themes in history part 1 and part 2 only. Okay. और मीन्स के लिए कीवर्ड सेंट्रिक कुछ नोट्स आपने बनाए थे? Definitely.
ठीक है, और वो नोट्स मतलब वो शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे एक डाउट होता है स्टूडेंट का कि जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हम अपने खुद के डिटेल नोट्स बनाएंगे। ओके। तो एक स्ट्रेटजी होती है कि आप डिटेल नोट्स बनाएं, या दूसरा होता है कि यार डिटेल नोट्स तो ऑलरेडी हैं अवेलेबल मार्केट में, ऑनलाइन, एवरीवेयर, तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स रीड करें और उसके बाद हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? I never preferred making notes, but for mains I make a short notes. Like for example, in the GS1 there is a art and culture portion. Every year they ask the question. I just make a 20-page note for the mains. Like there the everything is Iron Age, Chola. This year the question has been asked, and apart from that Mauryan Empire, the numismatic coins, everything on the 20 pages. There the only thing was that which dimension I will cover in them, what will be the introduction and the conclusion with the contemporary linkage. Okay, तो देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि अपने क्रिस्प नोट्स along the most important themes और उसी में आपने अपडेशंस कर लिए। ऐसे के लिए क्या आपने किया? Actually, I don't have that much time for essay because when my mains was UPSC mains, I was in the academy, my training academy. I get only 1 month EOL on the extraordinary leave. For essay, the best thing I think which I have done, I refer to the 5 toppers. Every copy they have answered, I just noted down the anecdote whichever they have used, and that collected up to 100 anecdotes, and I revised them multiple times, and I write 2 to 3 essays. In that I incorporate them. I tried that कि they are incorporating it. That's it. जो मैंने बात आपसे कही थी कि मेथड टू एवरीथिंग, मतलब यही चीज़ यूपीएससी देख रही है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, व्हाट मेथड आर यू अडॉप्टिंग। कई बार बहुत ही रिगरस जो हम प्रिपरेशन में चले जाते हैं, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस स्मार्ट वे इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। जब हमारी बात हो रही थी तो यू आर सेइंग कि एकेडमिकली तो मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रगल हुआ नहीं, सब चीज़ें स्मूथली होती चली गई। अब बस एक स्ट्रगल हो सकता है कि हरियाणा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो शी इज़ गोइंग टू बिकम IAS, बस अभी ये है कि हरियाणा मिलेगा या कोई और मिलेगा, कोई और स्टेट मिलेगा। अच्छा, सेकंड आप कह रहे थे कि पर्सनल लाइफ में हाँ कुछ स्ट्रगल रहे, और हर एक एस्पिरेंट कुछ ना कुछ स्ट्रगल पर्सनल लाइफ में देखता है, और कई लोगों की प्रिपरेशन इसी वजह से ऑफ ट्रैक हो जाती है बिकॉज दे डोंट हैव सम कॉप अप मैकेनिज्म, दे डोंट नो द वे टू मैनेज प्रिपरेशन विद दीज पर्सनल इशूज। तो आपने मतलब इफ यू वांट टू शेयर, like first was the like I am from a very lower middle class background. I lost my father when I was just 5-year-old, and my mother is an Anganwadi worker, and we are just 2 siblings. And also in 2021 I lost someone very special to me, very close to my heart, and that thing pushed me to this direction because I always felt that there is personally I lost very much people dear to me. So this is the like setback in my personal life, I could say that. इसके बाद भी मतलब कंटिन्यू रखना। अच्छा, कभी सेल्फ डाउट नहीं आया इस पूरी तैयारी में? Every single day. That's not possible कि like आपको self doubt आए ही नहीं। I have a diary, like I used to journal and I used to write होगा इस बार, नहीं होगा। Before the day 22nd April, on 21st I was also writing like if the list में नाम आता है तो that will be the happiness। अगर नहीं आता मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि नहीं हुआ तो प्रीलिम्स करना है, नहीं करना है। सेल्फ डाउट एवरी सिंगल वन, एवरी सिंगल टॉपर हैव सेल्फ डाउट, आई थिंक सो। तो जो आप लोग सोच रहे थे कि अभी भी डाउट आ रहा है, लग रहा है, अच्छा ऐसा भी लगता था आपको कि शायद आप भूल गए हैं? डेफिनेटली everyone like in the history I forget about names. The key mantra is like you have to revise again and again. तो मतलब डर भी लगता है और ये भी लगता है कि शायद भूल गए हैं, तो दैट इज़ नेचुरल। अगर आपके साथ अभी वो हो रहा है दैट इज़ नेचुरल। और अल्टीमेटली करना क्या होता है, यू हैव टू एक्ट, बस काम करने लग जाओ, डोंट गिव योर माइंड लग्जरी। मैं तो कहता हूँ कि माइंड 0 स्टेज में आ जाओ और बस काम करने लग जाओ। इंटरव्यू स्टेज आपकी कैसी रही? Interview was like very unpredictable. Oh, कुछ highlights? My interview was basically about engineering, whole engineering. When I came out, I thought that is it a civil engineering interview or the engineering service interview? So that's the major highlight of my interview. तो यानी कि आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? Definitely. कैसे क्वेश्चंस पूछे? It was very core, like regarding the transportation engineering, regarding soil mechanics. There is a subject construction management. They ask about the difference between CPM and PERT. That's kind of a thing. Angle of shear resistance. I never thought that they will ask that much core civil engineering to me. और आप इसको पढ़कर गए थे? Yeah. Because somewhere toppers also says that, teacher also says that that you have to be prepared
on every aspect of your DAF. और कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जो आपने डक कर दिया, आपको लगा कि यार नहीं आ रहा? Yes, definitely there are questions when I said no, I don't know. वो सबके साथ होता है. It's a human tendency. Everyone, सबको सब नहीं पता हो सकता है. और कंफर्टेबली अगर आपने नो बोल दिया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि मतलब कुछ नेगेटिव ही होगा. Yes. रिजल्ट आया तो वो दिन कैसा था, कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? रिजल्ट के दिन से पहले तो लास्ट तक आते आते मेरे को ये लग रहा था कि लास्ट नेम भी आ जाए प्लीज पीडीएफ में, कहीं लास्ट में भी शो लास्ट भी नेम आ जाए. क्योंकि कभी लगता था कि हो जाएगा, कभी लगता है कि नहीं हो जाएगा. 50-50 चलता ही रहता है. एवरीवन हु हैज अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू, सबके मन में यही चलता है. जब लास्ट तक होने लगा था कि आज मंडे है, आज रिजल्ट आएगा, तो आई वाज लाइक कि प्लीज लास्ट नेम आ जाए मेरा. एंड द डे वन ऑफ माई फ्रेंड सेड दैट योर नेम विल बी ऑन द फर्स्ट पेज. So I bet with him like कि नहीं होगा यार, ऐसा नहीं होगा, इतना अच्छा भी नहीं प्रिपेयर किया है. I have a self doubt on myself. But when we opened the PDF, we saw that last second like 53rd number. 53rd number. So I felt very happy. For some time I become like हुआ क्या है. I was not able to digest that thing. I was not able to analyze like एक होता है ना कि रिजल्ट आता है उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ भी है नहीं हुआ है. When after the 5 to 10 minutes I realized that yes, it's my name. I cross-checked my name 50 times. Like is it my roll number or not? Then I called my mother and told her like finally it's there. मदर का क्या रिएक्शन था? My mother was so happy. She said to me first word like मैंने बोला ही था प्रिपेयर करते वक्त आ जाएगा राम, तू वैसे ही टेंशन ले रही थी. इस पूरी जर्नी में आपको गाइड कौन करता था? जैसे मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थी, तो सिबलिंग जो आपके छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे भाई हैं. छोटे भाई हैं, तो मैं एक बड़ी बहन वाली भूमिका भी थी. तो गाइड कौन करता था थ्रू आउट दिस जर्नी? मतलब एक होता है ना कि कोई ना कोई पीछे है, मतलब कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या एकेडमिकली वैसे आप बता ही रहे थे कि देयर वर सम सीनियर्स, है ना, देयर वाज मतलब अल्टीमेटली यू नीड सम कोर ग्रुप. डेफिनेटली यू कैन फॉल अपॉन कि यार कुछ गड़बड़ हो गई तो दे आर देयर. तो लेकिन वो मैटर करता है कि वो हैं कौन लोग. तो मतलब वी नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव. तो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मेरे सीनियर स्कॉलर से बहुत सारे सर्विसेज में हैं, तो उनसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए मेरे को डैफ फिलिंग करना था. तो वन ऑफ माय कॉलेज सीनियर विनायक सर वाज इन आईएएस. ही टोल्ड मी लाइक दिस कैडर प्रेफरेंस, दिस इज लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस थिंग. फॉर द मेंस my friend is also have appeared for multiple times in the mains. So he told me that completing the answer is very necessary. The quality, average quality should be there. In some question there should be good qualities, and you should not compromise on completing the paper and quality. Like you have to balance between these things. In the prelims also, like every senior, whichever senior I got, I just used one. For the initially when I thought about this in 2021, I talked to AI to Anu Kumari ma'am that time, and from her I inspired like I should do this thing. Okay, great. करंट अफेयर्स एक मेजर इशू रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपने कैसे प्रिपेयर किया? सो करंट अफेयर्स के लिए मैंने बहुत सिंपल अप्रोच रखा. पहले मैंने सबका देखा था कि सब कोई बोल रहा था कि नोट्स बनाने, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं. तो आई हैव सब्सक्राइब फॉर द हिंदू पेपर. आई यूज टू रीड हिंदू पेपर एंड देन आई revise them from the monthly magazine. Any coaching monthly magazine will suffice, but I will not rely on the annual because I find them bulky. Like before starting the preparation, I've one time look at the PT 365. I find them very bulky, like I will not able to revise them. That's the case. But I don't make any notes. Okay, तो ना तो आपने प्रीलिम्स के लिए ना मेंस के लिए कोई भी करंट अफेयर्स बेस्ड नोट्स नहीं बनाए? और न्यूज़पेपर के भी नोट्स नहीं बनाए हैं, बस रीड किया है उसको. रीड किया है. और डेली एक ही न्यूज़पेपर किया है या स्विच आप करते रहते थे? डेली वन न्यूज़पेपर. विच न्यूज़पेपर वाज? द हिंदू. तो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. तो शी रेफर्ड द हिंदू बट शी वाज कंसिस्टेंट और ऐसे कुछ नोट्स नहीं बनाए. अच्छा, कभी ऐसा फील होता था कि आपने द हिंदू पढ़ तो लिया है या कोई भी न्यूज़पेपर, कई लोगों के साथ ऐसा होता है और उसके बाद लगता है कि व्हाट वी हैव रिटेन्ड, कि मतलब सीखा क्या है इसमें से. तो इसी वजह से कई लोग फिर स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि दे वांट टू एक्सट्रैक्ट सर्टेन कीवर्ड, सर्टेन पॉइंट्स एंड दे वांट टू इंटीग्रेट इनटू द स्टैटिक नोट्स, जिससे कि लगे कि हाँ अगर मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे दिए हैं तो ये मैंने पाया है. तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू दिस? Initially 1 to 3 months I used to like I am not able to retain anything, but after reading for
3 to 4 months, you started noticing that these things has been ingrained in you when you write answer or when you attempt any mock test series. Somewhere in the subconscious mind, they are there. And also I have revised the monthly magazine. That may be the case. But from sometime I have taken the case studies or anecdote for my optional sociology. तो यानी कि एक बार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें रेगुलरली और आपने मंथली मैगजीन रेफर करी तो कुछ चीज़ें दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाती हैं दैट यू कैन रिप्रोड्यूस वेर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ चीज़ें इन्होंने नोट डाउन कर ली. एथिक्स एक मेजर इशू है, तो एथिक्स आपने कैसे किया? I was very scared of ethics. Like I'm not finding any good resource. Like या तो मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी है ethics के लिए, लेक्सिकॉन, जी सुब्बाराव, every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. Then Decode Ethics by Mudit Jain sir. So then I referred his books and his lectures, and that do wonders उसके for बाद me. आपने मतलब उसी बेसिस पे नोट्स बिल्ड हुए और उसी का आपने यूज़ कर लिया. Yes. ग्रेट. कुछ स्पेसिफिक लर्निंग, कुछ पॉइंट्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि यार इस जर्नी में मतलब ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, बट उसको प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए कुछ ये स्टेप्स आप ले सकते हो, कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम? Firstly, for the new aspirant who will be appearing for the first attempt, or like they are starting their journey, they should have a self-belief. Like they should faith on themselves before starting the preparation. They have to do some groundwork, like which resources they have to use, because in the market there are so many resources, and you just have to stick by one, and you should revise it multiple times. And for the people who are appeared multiple times, because I've met recently so many toppers, they have appeared. Just find out where you are like lagging behind, कहाँ पे आपके mistakes है. If your prelims is weak or mains is weak, in the prelims also people usually say that उनका prelims weak है, but उनके कुछ ही subjects weak होते हैं. Maybe they are coming majorly in the prelims. So they should find out their things. Like everyone has their specific loopholes, and you have to plug that loopholes. तो एग्ज़ाम को समझिए, सोर्सेज को समझिए, अपने वीकनेसेस को समझिए. अगर उस पर टाइम से काम हो जाएगा तो प्रीलिम्स में जो अनसर्टेनिटी है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी, राइट? लैंग्वेज, जैसे सर्टेन स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड एंड दे आर सेइंग दैट द रिजल्ट्स इन हिंदी मीडियम आर लेस इन कंपैरिजन टू इंग्लिश मीडियम. सो डू यू हैव सर्टेन इनसाइट्स ऑन इट? कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे? As you know, UPSC is unpredictable. I don't think about the medium is a barrier in clearing the UPSC, because there are so many previous toppers who have cleared with a wonderful rank in Hindi medium as well. Just the thing is that you should grasp what the UPSC has been asked from you. If the resources are limited, you could translate. You could use the Chat GPT to translate them into the Hindi, and as well, because the major from Hindi medium student, I have heard that the newspaper is a major barrier because they don't have a very good national newspaper. So they can convert it into the like Hindi, but it will be the little extra effort. I think so. But ultimately the content which is required for a particular topic, you need to have that content ready. Yeah. And you need to have that इस बात को भी हिंदी में बोलना चाहिए वैसे हमें, मतलब आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए जो आप एक्सप्रेस करते हैं. खैर, इसके अलावा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, तो डिड यू यूज़ सोशल मीडिया या फिर आपने अपने आप को कट ऑफ कर लिया था? कुछ ऐसे भी टॉपर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया का यूज़ किया? I didn't cut off from the social media completely because I was active on Instagram during my preparation as well, and I was active on the WhatsApp as well. So, but you have to minimize their use. It should not affect your studies. When you are studying, you should not use those like Instagram scrolling reels. But when you are free for the leisure time, you could. मतलब rather than focusing on कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस रखें तो काम बन जाएगा. नहीं तो कुछ नहीं करना इस पर फोकस करा और कुछ करा नहीं जो ज़रूरी था, तो आई थिंक कुछ कॉन्फिडेंस लूज ही होगा उससे. तो अगर आपके इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन शेयर इन कमेंट्स. वी विल रीच आउट टू शिवानी एंड गिव यू दी रिप्लाई विच शी इज़ गोइंग टू कन्वे. तो आई होप इस कन्वर्सेशन ने आपको कुछ हेल्प की होगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में. स्टे ट्यून्ड और फिर मिलते हैं आपसे. ख्याल रखिए अपना. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.